Very good morning everyone. Today we are going to discuss about relative velocity in a plane. ठीक है, हमने किसी प्लेन में relative velocity देखनी है. Plane means it is in two dimensions. You can say clear. Before this we have discussed the relative velocity and that was the case along a straight line. एक straight line में हमने relative velocity find out की थी in previous chapter. In this chapter we are going to discuss the relative velocity in two dimensions, means in a plane. Clear? देखिए relative velocity क्या है, वहां पर भी relative velocity वही थी, यहां पर भी वही है. It was the difference of the velocities of two objects moving simultaneously. So we can say relative velocity क्या है, it is the difference in the velocities. It is the difference in the velocities between two objects moving simultaneously. ठीक है, तो जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली मूव कर रही हो, along with each other they are moving, ठीक है, then उनकी वेलोसिटीज के बीच का जो डिफरेंस है, that difference is called as a relative velocity. Clear? Now we are having, वहां पर हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी इस तरह से मूव कर रहे थे. they were moving along a straight line, but here the situation is that they are moving in a plane. It means an object is moving with velocity va and an other object is moving with velocity vb, means both are at certain angle with each other. ठीक है, तो इस तरह से two objects हैं जो velocity va और vb के साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है, तब इनकी हमने relative velocity फाइंड आउट करनी है. देखिए let us go through an example. एक एग्जांपल के लिए चलते हैं. Whenever two buses are stationary at the bus stand, बस स्टैंड के ऊपर two buses खड़ी होती हैं. ठीक है, एक बस में हम बैठे हैं और बगल वाली बस भी है. हमारी बस रेस्ट में है और जो हमारे साइड में बस है वो धीरे धीरे आगे चलना स्टार्ट होती है. अगर हम इस बस की तरफ देख रहे होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी बस जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में हट रही है, जबकि हमारी बस कैसे है, रेस्ट. दूसरी बस आगे की तरफ को जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लगा हमारी बस पीछे को हट रही है. मींस दूसरी बस की जो वेलोसिटी है वो हमारी बस के ऊपर थोपी जा रही है. थोपने का मतलब है टू इम्पोज. क्लियर? इसका मतलब है जब हम टू डायमेंशंस में या प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, देन वी हैव टू अप्लाई सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी, क्योंकि यही सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, इट इज हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट द डिफरेंस अमंग द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. अब देखिए सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी क्या होती है. आई एम डिस्कसिंग अबाउट a velocity which is called as superimposing velocity. Superimposing velocity. देखिए what is superimposing velocity? Let us consider an object is moving with velocity va. तब इस ऑब्जेक्ट की इक्वल एंड अपोजिट जो वेलोसिटी होगी that is called as superimposing velocity. Means the velocity like this. This is minus va वेक्टर. तब हम बोलेंगे ये जो नेगेटिव va वेक्टर है that is the superimposing velocity of this one. Clear? Similarly, if we are having velocity this vb, then its equal and opposite velocity minus vb is called as a superimposing velocity of this one. क्लियर? समझ रहे बात को? सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी का मतलब है ये एक ऐसी वेलोसिटी है जो इस वेलोसिटी के इक्वल है, लेकिन कैसी है? अपोजिट.
This is the superimposing velocity, which is equal to the velocity of this one but opposite to it. Clear? So such kind of velocity is called as a superimposing velocity. So in case when we have to find out the relative velocity, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक केयर, हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और वो है सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी का. सो नाउ लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग दीज टू वेलोसिटीज. तो अब हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ का. दिस इज VA एंड हियर इट इज VB. तो हमारे पास टू वेलोसिटीज आ गई. वन इज VA and second one is VB. हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, VA vector. Clear? Let these two are making some angle with each other. Two objects कुछ velocity के साथ चल रही हैं. Velocity है VA vector and VB vector. दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी आपस में कुछ एंगल बना रही हैं थीटा. क्लियर? ठीक है. अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी. तो वी कैन से देन टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, देन टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, क्या अप्लाई करते हैं? सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटीज अप्लाइड. वी अप्लाई सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी इन ए प्लेन. अप्लाई सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी. हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी अप्लाई द सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी एंड सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी इज द वेलोसिटी which is equal and opposite to the velocity of an object. फॉर एग्जाम्पल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव velocity of object A with respect to object B. तो हमने ऑब्जेक्ट A की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट B के. बिल्कुल अटेंटिव होके बात सुने. हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट A किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी. तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसके लिए सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई करेंगे. अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है. सो अप्लाई दिस सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी मींस दिस इज द वेलोसिटी व्हिच इज equal and opposite to that of the velocity of object B. आप समझ गए ना बात को? This is the superimposing velocity. Clear? जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हम उस ऑब्जेक्ट के लिए सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई करेंगे. क्लियर? पहली बात सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी का ध्यान रखना है. दूसरी बात सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी हम हमेशा उसके लिए अप्लाई करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो यहां पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट ए के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी. तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया उसके रिस्पेक्ट में बात की गई उसके लिए सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई करेंगे. नाउ वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम. तो हम यहां पर अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे. अब आपको पता है पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हमारे पास वेक्टर लॉ पढ़ा था हमने, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम. सो देयर आर टू वेक्टर्स. दिस इज द वेक्टर VA vector is there. This is VA vector and here it is negative of V. Then the diagonal of this parallelogram it represents the resultant and the resultant here is called as relative velocity. Then this is a relative velocity of object A
विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव डन हियर, अप्लाई superimposing, here apply superimposing velocity, apply superimposing velocity for object B। तो ऑब्जेक्ट B के लिए सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई की हमने, एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम, एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया है, और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, देन यूज द लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, देन according to vectors law of a parallelogram, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर इस रिजल्टेंट वेक्टर को क्या बोला गया, रिलेटिव वेलोसिटी। सो वी कैन से हियर दैट इज VAB, means it is the relative velocity of object A with respect to object B। तो कितना हो जाएगा, VAB is equals to under root resultant vector R is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos theta। theta was the angle between two vectors। clear? तो यहां पर क्या आ गया, A की जगह है VA, तो A स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos ऑफ थीटा। थीटा था वहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यहां पर हम देखेंगे तो ये एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस। देखिए बेटा ध्यान से, दिस इज एंगल थीटा एंड हियर वी आर हैविंग द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमें इस एंगल की जरूरत है, ये एंगल कितना है, दिस इज थीटा, देन ऑब्वियसली इट इज 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस theta। So we can write here it is cos of 180 minus theta। So this is cos 180 minus theta। cos 180 minus theta you know very well, that is equals to minus cos of theta। क्लियर? तो बोलने का मतलब है, अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट ए के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग द सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी। और जैसे ही हमने सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई की, वी हैव कंप्लीटेड द पैरेललोग्राम एंड फाउंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर। Here it is the relative velocity of object A with respect to object B, and that is written here, clear? But you know very well, but cos of 180 minus theta is equals to minus cos of theta, clear? This is cos 180 minus theta equals to minus cos theta, clear? So अगर ऐसा होता है, then we obtain the relative velocity of object A with respect to B is equals to under root, that is VA square plus VB square minus, here it is cos 180 minus theta and it is equals to minus cos of theta। So minus cos theta जब हम यहाँ राइट करेंगे, then it will become minus 2 VA VB cos of theta, because instead of cos 180 minus theta we have replaced it by minus cos theta। तो ये बन गया हमारे पास, and this is the final formula for the magnitude of this resultant velocity, or
here it is called as a relative velocity। तो इस तरह से हमने relative velocity फाइंड आउट कर ली, किसके लिए, ऑब्जेक्ट A के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट B के रिस्पेक्ट में। here it is the magnitude। ठीक है, इस इक्वेशन का नेम रख सकते हैं हम, लेट इट इज इक्वेशन A और 3, 4 जो भी आपका सीरीज चली हुई, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए। इसी तरह से इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो आल्सो डायरेक्शन ऑफ VAB वेक्टर मींस direction of relative velocity of object A with respect to object B, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। नाउ लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये जो VA है ये और VAB रिलेटिव वेलोसिटी VA के साथ कुछ एंगल बनाती है अल्फा, क्लियर। सो लेट हियर दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला एंगल हमारे पास आ रहा है, लेट दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। ये एंगल हमने नोटिस किया था, इट वाज 180 माइनस थीटा। नाउ इट इज द एंगल बिटवीन VA एंड दिस रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ अल्फा इज द एंगल made by VAB vector with VA vector, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बना रही है अल्फा, तो हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। देन टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देखिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ ट्रायंगल लॉ, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, द डायरेक्शन वाज गिवन बाय टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, हां जी, दैट वाज b sin of theta upon a plus b cos theta। if you remember, This was the formula for direction of a resultant vector। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, यहां से हम बिल्कुल वही चीज अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल्स टू, नाउ इंस्टेड ऑफ b here it is VB, clear, instead of a here it is VA, clear। so we can substitute these values here, instead of theta here it is 180 minus theta। समझ रहे हो बात को। तो जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, उसी फॉर्मूले का हम यूज करके डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू VB sin of here it is 180 minus theta divided by, it is A here, instead of A we will write VA plus here it is VB cos of theta, here it is VB cos of theta, instead of theta here it is 180 minus theta, clear। so this is tangent alpha we are calculating here, समझ गए बात को। अब देखिए sin 180 minus theta, what sin 180 minus theta is equals to sin theta, clear, and cos 180 minus theta जो अभी हमने डिस्कस किया था माइनस cos of theta। तो इसलिए इस इक्वेशन से देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया जी टेंजेंट अल्फा, देन वी कैन से टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू VB sin of theta divided by VA minus VB cos of theta। so this is the formula for direction of a relative velocity, and say this is equation number B, ये इक्वेशन नंबर 3rd 4th जो भी आपकी सीरीज चली हुई है, क्लियर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द डायरेक्शन
and the magnitude of this relative velocity। ये समझ में आई सबके बाद? तो ये तो था relative velocity of object A with respect to object B। इसी तरह से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, similarly if we want to find out relative velocity of object B with respect to object A। पहले हमने ऑब्जेक्ट A के लिए रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, अभी हम ऑब्जेक्ट B की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको पता है, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मेन प्रोसीजर। मेन प्रोसीजर है वी हैव टू अप्लाई द सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी। हमें सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो देखिए सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी कैसे अप्लाई करेंगे। यहां पर here we will apply superimposing velocity, और superimposing velocity उसके साथ अप्लाई करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम relative velocity निकाल रहे हैं। we are finding the relative velocity of object B with respect to A। तो this time हमारे पास जो पैरेललोग्राम बनेंगे वो कैसे बनेंगे? here it is VA, here it is VB। अब क्या करना है हमने? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है A के साथ हमें अप्लाई करना है कौन? सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी माइनस VA। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसके लिए हमें सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई करनी है। पहले देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू B था तो सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी भी हमने B ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई की थी। यहां पर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A, तो A के लिए हमने सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई की है। Next, the procedure is same. Again we will complete the parallelogram। हम parallelogram complete करेंगे, तो parallelogram जब complete करेंगे then the diagonal of this parallelogram that will represent the relative velocity, means this is the relative velocity of object B with respect to A। आप समझ गए? ये था आपके पास एंगल थीटा, ये कितना बचा बेटा? 180 माइनस थीटा। आप समझ गए बात को? फॉर्मूलाज अब सारे के सारे वैसे ही आने हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल्स टू, अगेन इट इज VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB cos ऑफ थीटा। ये बिल्कुल वैसे ही आना है, डायरेक्शन भी वैसे ही आनी है। यहां अगर हम अल्फा नहीं बोलेंगे, अल्फा की जगह बीटा बोल लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट बीटा। आप समझ गए? फॉर्मूला विल रिमेन एज इट इज। बीटा हम किसको मानेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी और वेक्टर A के बीच का एंगल, ये बीटा। क्लियर? समझ ना बात को? तो सिमिलरली फॉर्मूला वही रहना है, सिर्फ पैरेललोग्राम चेंज हो रही है। पहले इस तरफ को बन रही थी, अभी उस तरफ को बन रही है। रिजल्ट्स आर सिमिलर। क्लियर? तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। अब इसके लिए केसेस कर लेते हैं। देखिए केस 1, इफ VA इज पैरेलल टू VB, मींस दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। बोलने का मतलब है बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन वी कैन राइट। तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा? देन VAB इक्वल्स टू VBA एंड इट इज इक्वल्स टू, देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा 0 है, तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos of 0 degree, cos 0 degree means 1, then it comes out to be VAB, लिखो चाहे VBA लिखो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आता है। इट इज इक्वल्स टू, यहां पे 1 आ जाएगा इसकी जगह, तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, मींस इट इज VA माइनस V।
आप समझ गए बात को। ये अंदर आपके पास आ जाएगा va² प्लस vb² माइनस 2va/vb, तो a माइनस b होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो ये बचा। डेफिनेशन भी यही लिखी थी, रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक तरफ जा रही हो तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, डिफरेंस। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो मींस थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो फाइंड आउट कर लीजिए। केस 2, if both are moving opposite to each other, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा देन इट इज इक्वल्स टू va² प्लस vb² माइनस 2va/vb cos of 180 is equals to -1. So it will come out to be VAB equals to VA² plus VB² plus 2VA/VB, क्योंकि cos 180 कितना हो गया, -1, -1 हो तो प्लस हो गया, ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मींस इट इंप्लाइज VAB is equals to VA plus VB। तो when the objects are moving in opposite direction, then their relative velocity is equal to their addition of the velocities। ठीक है, if they are moving perpendicular to each other तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। So it is the case 3, if VA vector is perpendicular to VB vector means that is theta equals to 90 degree, तो therefore VAB is equals to 90 डिग्री होगा तो बेटा देख लीजिए cos 90 is 0, तो 2VA/VB cos of 90 degree 0 means it is equals to VAB equals to under root of VA² plus VB²। it is equivalent to that of Pythagoras theorem। ठीक है, तो इस तरह से we can discuss about different concepts or different cases related with relative velocity। ठीक है, सुपरइम्पोजिंग वेलोसिटी का ध्यान रखें, पैरेललोग्राम लॉ का अप्लाई करें, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। क्लियर? सो टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय।